Hello everyone, my name is Kanika and I hope you all are doing very well. So, in today's class, we are going to study characteristics of computer. So, basically, before going into the characteristics of computer, let us understand what is a computer. I know you all must be aware what a computer is, but if we try to give it a definition, a computer is a machine that can be instructed to carry out sequence of arithmetic or logical operations automatically by computer programming. Means कंप्यूटर एक मशीन है जिस पे हम एक सीक्वेंस ऑफ वर्क वी परफॉर्म सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम्स for solving our arithmetical or logical problems by using a computer program, by using a computing program. Okay, then next, modern computers have ability to follow generalized sets of operation called programs. These programs enable computer to perform an extremely wide range of tasks. Means initially computer were designed just for solving the mathematical problems or arithmetic problems. We all know the first computer ever designed was abacus. सो मेन एम जो उनका मेन काम था कंप्यूटर्स का सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना था. But now we use computer for various other tasks. We use computers in school, in offices, for playing games, for making our documents, for making our notes, etc. It has the ability to store, retrieve, and process the data. In computer, we input the data, process the data, and output the data. You may already know that you can use computer to type documents. We can use computer for various needs. For example, as I told you, typing documents, send email, play games, browse the web, making spreadsheets, presentation, editing the videos, viewing the videos, and etc. Now let us discuss what is characteristics of computer. First, we need to understand what is the meaning of characteristics. So the meaning of characteristic, a feature or a quality typically to a person, place or thing and serving to identify them. Characteristic basically is किसी की कोई विशेषता, किसी की quality बताना. So today we are going to discuss various qualities of computer. Today the computer has made our lives very easy. So today we'll learn about the properties of the same computer. So here you can see there are certain characteristics which we are going to study. They are speed, accuracy, diligence, reliability, versatility, storage capacity, automatic, quick decision, multitasking, no feelings, power of remembering, no IQ. So first we will start with speed. Now what is speed? We are very much aware what a speed is. Can you tell me whether a computer is fast or a human being? Obviously, your answer will be computers. Computers are much faster to perform mathematical calculations than human. The computer are performing millions of tasks per second. It takes an hour or day for a person to do mathematical calculation on any work. To do some calculation or to work a computer, do in microseconds or nanoseconds. The same amount of work which we human do, जितना काम अगर मैं एज अ ह्यूमन करूँगी उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से कहीं ज़्यादा जल्दी वो काम एक कंप्यूटर कर लेगा. सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर. Second is accuracy. Now what do you mean by the term accuracy? Accuracy means how correct you are. कितना काम ठीक है. Okay, correctness of the work is called accuracy. A computer is very accurate. Now let me take for an example. You must solve mathematical calculations. Okay, so sometimes you may be correct, sometimes you may be wrong, but in case of computer it is accurate every time. It doesn't create any error in its calculation part. So as I read further, a computer is very accurate.
It does not make any kind of mistake in calculating. Sometimes we get some error, but these are because of the mistake performed by us, that is human beings. If you want to calculate 2 plus 2 using a computer, it will give you 4. But instead of 2, you write 2 plus 3. So it will give 5. So it is the human error. जो गलती हुई है वो आपसे टाइपिंग में हुई है, कंप्यूटर ने कैलकुलेट करके पूरा ठीक बताया कि 2 प्लस 3 5 होता है, लेकिन आपको आंसर 4 चाहिए था. 4 इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने गलती करी है. तो computer is accurate with its calculation, and if there is any error, then the error is by the human beings while inputting the data. The accuracy of the computer is constantly high, and it can perform hundred of operations with carry out calculation and analysis accurately and speedily. कंप्यूटर को आप कितनी ही बड़ी कैलकुलेशन करने को दे दो, वो हमेशा आपको सही रिजल्ट ही देगा और एक्यूरेट रिजल्ट देगा जब तक आप उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे. डिलीजेंस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीजेंस? डिलीजेंस मीन्स टायर्डनेस, थकान. क्या कभी आपने सुना है कि कंप्यूटर बहुत थक गया हो, वो बोल रहा हो आज मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हारा काम करने का, मैं बहुत थक रहा हूँ? ऐसा कभी भी नहीं होगा. बट वी ह्यूमन बींग्स, हम थक रहे हैं आज, हम नॉट फीलिंग वेल, फीलिंग टायर्ड एंड फीलिंग स्लीपी. बट कंप्यूटर के पास कोई इमोशन ही नहीं है. कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, आप उससे कितना भी काम करा लें. ठीक है. अ पर्सन गेट्स टायर्ड ऑफ डूइंग सम वर्क in few hours, and a computer has the ability to do any work continuously for many hours, even days and months. Even after the computer has worked for such a long time, there is no decrease in its ability to work and the accuracy of the result. हम उसको कितनी भी देर काम करा लें, लेकिन उसका रिजल्ट खराब नहीं होता. अगर आप उसको 3 दिन से भी काम करा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप उसे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए देंगे, सिंपल हो या मुश्किल हो, वो तब भी आपको रिजल्ट ठीक देगा. थकान की वजह से उसका रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उसको थकान महसूस ही नहीं होती. द कंप्यूटर डज वर्क विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मॉनिटरी एंड टायर्डनेस. रिलायबिलिटी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी मीन्स हम किस पे कितना रिलाय करते हैं, किस पे कितना भरोसा करते हैं. एंड कंप्यूटर्स आर रिलायबल इन दैट टर्म. Computers need to be reliable for people to use them and have confidence in them. If they are not reliable, then they will quickly be abandoned. Abandoned means उनको छोड़ दिया जाएगा. अब आप देखो कितनी बड़ी कंपनीज है, Amazon, Flipkart, Google, Facebook, they all have their data on computers. Totally they are working on computers. ऐसा नहीं होगा कि कभी, मतलब अगर ऐसा हो कि कंप्यूटर उनका बंद हो जाएगा तो उनकी तो कंपनी बिल्कुल बंद है. अगर गूगल का आप सोचो सर्वर बंद हो जाए, ख़राब हो जाए, तो कंपनी तो गई उनकी. बट ऐसा कुछ नहीं होता, ना अभी तक हुआ है और आगे के फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि ऐसा होगा, बिकॉज कंप्यूटर पे आप भरोसा कर सकते हैं. कंप्यूटर्स आर अ रिलायबल सोर्स. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर कि आप उस पर भरोसा कर सकते हो. वाई? एंड बिकॉज आप उस पर डेटा तो डालते ही हो, डेटा के साथ साथ वो आपको एक बैकअप भी प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड दी बैकअप इन दी इमरजेंसी सिचुएशंस. क्या प्रोवाइड करता है? हमें बैकअप प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम उसमें कोई भी तरीके का हमारा डेटा खोने के चांसेस कम हो जाते हैं. हम उस पर काम कर सकते हैं. वर्सिटैलिटी. वर्सिटैलिटी का क्या मतलब है? इट मीन्स कि हमारा जो एक कंप्यूटर है वो कितने तरीके के काम कर सकता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है. सो एज आई रीड, वर्सिटैलिटी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर. इट मीन्स दैट द कंप्यूटर इज़ केपेबल ऑफ वर्किंग इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड. कंप्यूटर जो है हर फील्ड में काम कर सकता है. आजकल आप देखते हो वी कैन यूज़ देम इन स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ऑफिसेज, रेलवे स्टेशन, होटल एक्सेट्रा. तो कंप्यूटर्स जो है वो हर जगह पे, मोस्टली हर जगह पे आज के टाइम पे यूज़ हो रहा है. दैट मीन्स इट इज़ वेरी वर्सेटाइल. द कंप्यूटर सिस्टम इज़ मल्टीटास्किंग सो दैट यू कैन डू 2 टास्क वेरी इजीली एट द सेम टाइम. साथ ही साथ ही वो मल्टीटास्किंग है जिसमें हम 2 काम एक साथ कर सकते हैं. नेक्स्ट, स्टोरेज कैपेसिटी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज कैपेसिटी? A computer system have a very large capacity to store any type of data. A computer can store
and resell any information due to its storage capacity. स्टोरेज कैपेसिटी मतलब आपका कंप्यूटर कितना स्टोर कर सकता है. ये तो आपको पता है कि आपका कंप्यूटर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर्स को स्टोर करे, चाहे वो आपके गेम्स को स्टोर करे, चाहे वो आपके प्रोग्राम्स हों, फाइल्स हों. तो वो कितनी कैपेसिटी तक, चाहे वो 10 GB कर सकता है, क्या वो 20 GB स्टोर कर सकता है, क्या वो 500 MB स्टोर कर सकता है, कितना स्टोर कर सकता है, तो वो उसकी कैपेसिटी है कि हाँ भाई ये कंप्यूटर इतना स्टोर कर सकता है. दैट इज़ स्टोरेज कैपेसिटी. As I read, computers have the ability to store all types of data, such as data, pictures, files, programs, games, and sound for many years. And later, we can get any data in few seconds at any time for taking that information and for future retrieval. आप उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं जो कि हैं पिक्चर्स, फाइल्स, प्रोग्राम्स, गेम्स एक्सेट्रा, और अगर आपको फ्यूचर में कभी भी उनकी ज़रूरत होगी तो आप उनको स्टोर कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक. ना ऑटोमेटिक, वी ऑल नो ऑटोमेटिक जो अपने आप से काम हो जाए. एंड कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन बिकॉज वन स्टार्टेड अ जॉब दे कैन कैरी ऑन अंटिल द जॉब इज फिनिश्ड विदाउट एनी ह्यूमन असिस्टेंस. आप उसको कोई एक काम करने को दे दो तो वो अपना काम पूरा करेगा. वो बीच में ऐसे नहीं आएगा कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मुझे ये बताओ, ये करो. नहीं, कंप्यूटर इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन. वो पूरा काम अपने आप खुद कर लेता है. फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल सॉल्यूशंस, अगर आप उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को दोगे वो अपने आप पूरी सॉल्व कर लेगा. वो बीच में ऐसे नहीं कहेगा कि मुझे एक लाइफ लाइन चाहिए या कुछ. नहीं, वो अपना काम पूरी तरीके से खुद करता है. क्विक डिसीजन. अब हम एज अ ह्यूमन बींग, इफ़ वी आर आस्क्ड फॉर सम, लाइक इफ आवर मदर आस्क कि व्हाट यू वांट फॉर योर डिनर, तो हम थोड़ा सोचेंगे कि हमें ये सब्जी खानी है, हमें ये नहीं खाना. बट कंप्यूटर इज़ वेरी क्विक विद इट डिसीजंस. कंप्यूटर टेक्स अ डिसीजन वेरी क्विकली गिवन बाय द यूज़र विच इज़ द इंस्ट्रक्शंस, अर्थमेटिक डेटा और लॉजिक डेटा. जब तक ह्यूमंस उसको करेक्ट लॉजिक प्रोवाइड करेगा तब तक वो अपना डिसीजन क्विकली ले सकता है. ठीक है. All mathematical data is called arithmetic data. Copy document, delete file, open camera, etc. This is a type of data is called logical data. तो कंप्यूटर जो है वो डिसीजन लेने में काफ़ी क्विक होता है. बिसाइड्स आप उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड लॉजिक प्रोवाइड करो. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मल्टीटास्किंग. सो मल्टीटास्किंग इज मल्टी प्लस टास्किंग. मल्टी मीन्स many and task, you all know task means the amount of work or the work which you are doing. Task means the work which you are doing, जो आप काम कर रहे हो. So multitasking means when you are doing many tasks together. In our real life as a human being हम कितनी बार multitasking करते हैं. आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा multitasking. So for example, if you are doing some homework or you are just searching Google for some interesting facts, तो आप उस समय Google पे भी सर्च कर रहे हो. You are also listening to the music and also आपकी आप कुछ प्रिंट आउट भी निकाल रहे हो. तो आप 3-4 काम एक साथ कंप्यूटर के साथ करवा रहे हो. That is multitasking. So as I read, multitasking is also a very special feature of computers. A user can do different type of tasks on the computer at the same time. सेम टाइम के अंदर वो बहुत सारे टास्क कर सकता है. लाइक वी आर यूजिंग MS Word एज वेल एज लिसनिंग टू सॉन्ग्स और प्रिंट आउट्स भी हम निकालते रहे साथ साथ. तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी टास्किंग. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज नो फीलिंग्स. कंप्यूटर्स के पास कोई फीलिंग्स नहीं होती. वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट. इन कंप्यूटर्स लाइक ह्यूमन्स देयर इज़ नो फीलिंग एंड इमोशन. उसको ऐसे नहीं होता कि मैं थक गया, मैं अब काम नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बुखार लग रहा है, नहीं. नॉर डज द कंप्यूटर हैव एनी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. उसके पास नॉलेज ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि बुखार क्या होता है, दुख क्या होता है, खुशी क्या होती है, तो कुछ नहीं पता. बिकॉज द कंप्यूटर इज अ मशीन विच वर्क्स कॉन्टिन्यूसली ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ह्यूमन्स विदाउट एनी सेल्फिशनेस एंड विदाउट टायर्डनेस. क्योंकि कंप्यूटर अपने आप से तो कुछ काम करता नहीं है. कंप्यूटर डज नॉट डू एनी वर्क ऑन इट्स ओन. It does the work only when we ask the computer to do a certain task.
जब हम उसको कुछ काम देते तभी वो काम करता है। वो अपने आप से बैठे बैठे ये नहीं कहेगा चलो मैं बोर हो रहा हूँ, चलो मैं अपने आप से गेम खेल लूँगा, नहीं। जब तक आप उसमें बैठ के उस पर काम गेम अपना खोल के नहीं खेलोगे, वो अपने आप गेम नहीं खेलेगा। तो कंप्यूटर वही करेगा जो आप कहोगे उसे करने के। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। अगर मैं आपसे पूछूँ आपने कल रात को क्या खाया था, आप मुझे बता देंगे। मैं आपसे पूछूँ कि आपने पिछले संडे को क्या खाया था, शायद कुछ लोग फिर भी बता देंगे। बट इफ़ आई आस्क यू what you had in dinner on 15th of June, will you be able to tell me? No, because human power of remembering is limited. हमें कुछ लिमिट तक ही याद रहता है, बट कंप्यूटर्स पावर ऑफ रिमेम्बरिंग इज एक्सेप्शनल. So as I read, power of remembering is also a very special characteristic of the computer. You can store many types of information and data on your computer in very large quantities. Whenever you need this data in future, you can get that data in few seconds, no matter what. You can get the data even after a long time. It depends on you after how long or after how many years you need that data. कंप्यूटर के पास अगर आपने कुछ सेव करके रखा है तो वो उसके पास हमेशा रहेगा जब तक आप उसको डिलीट नहीं कर देते, या फिर किसी अननेचुरल वजह से, जैसे सिस्टम ही ख़राब हो गया या कोई नेचुरल कैलिमिटी में सिस्टम आपका ख़राब हो गया, वो ना हो जाए। लेकिन कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं भूलता. इट हैज़ अ पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, दैट इज़ अ वेरी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ नो IQ. नो IQ मीन्स नो इंटेलिजेंट क्वेश्चन. उसके पास अपनी इंटेलिजेंस नहीं है. Yes, computer can solve very complicated maths problem, but it cannot do it on its own. जब तक आप उसको वो करने को नहीं बोलोगे, वो नहीं करेगा. A computer is a dumb machine without a user. A computer is useless machine and a device. Until a user does not give any instruction, it cannot do any work. Only after completing the instruction, he completes that work very fast. जब तक आप उसको पूरा इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, अगर आप सिर्फ 2+2 लिख के छोड़ दोगे, क्या वो आंसर करेगा आपको? नहीं. जब तक आप उस पर एंटर दबा के इक्वल टू का साइन दबा नहीं दोगे, तब तक वो आपको 2+2 4 आंसर नहीं देगा. सो दैट मीन्स अ कंप्यूटर इज अ डम मशीन. जब तक आप उसको काम करने को नहीं दोगे, वो तब तक काम नहीं करेगा. So this was all about characteristics of computers. I hope you have understood all the characteristics very well. And if you still have any doubt, keep your doubts with yourself and we will discuss them in the doubt session whenever we have next. Thank you.